हेलो। इस वीडियो में हम डीपीपी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे कुछ डिफ़िकल्टी फेस किया होगा कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में, तो मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअली भी बहुत अच्छा है। इस प्रॉब्लम में पी एक सेट है। पी इज द सेट ऑफ ऑल दोज थीटा which follows this property, that is sin theta minus cos theta equal to root 2 cos theta, and Q is the set of all thetas such that sin theta plus cos theta is equal to root 2 sin theta. Then options: P is a subset of Q and Q minus P is not an empty set. Q is a subset of P and Q is not the subset of P. P is not the subset of Q and P equal to Q. These are the four options. Correct. Now how to solve this question? Now see, we have to look for this set P, right? And P is the set of all theta which follows this property. Sin theta minus cos theta is root 2 cos theta. Now we have to solve this equation. So this is sin theta equal to root 2 cos theta plus cos theta, that is root 2 plus 1 into cos theta. Got the point? So therefore tan theta will be root 2 plus 1. ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 2 प्लस 1. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 2 प्लस 1. ऐसे हम बोल सकते हैं. सो P इज द सेट ऑफ ऑल दोज थीटा which follows this one, that theta is tan inverse of root 2 plus 1. Right, similarly here Q. Now sin theta plus cos theta root 2 sin theta, this gives cos theta is equal to root 2 sin theta minus sin theta. Fine. So therefore cos theta equal to root 2 minus 1 sin theta, and this gives tan theta equal to 1 upon root 2 minus 1. Now here comes the importance. Already मैं बता चुका हूँ. We have already discussed about the concept of the irrational number, that root 2 plus 1 and root 2 minus 1 exponential concept. Remember, root 2 plus 1 and root 2 minus 1 are reciprocal of each other, right? That is 1 upon root 2 plus 1 is root 2 minus 1, or 1 upon root 2 minus 1 is root 2 plus 1. So here also tan theta is root 2 plus 1. Here also tan theta is root 2 plus 1. Your problem is solved. So P and Q are the equal sets. Correct? So therefore this option D, P equal to Q, is the correct one. Got the point? Okay, come to the second question. In this questions, देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक मेथड बताया जिसमें इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी आया था और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट आया था. ठीक है, यहाँ पे हमने एक नया मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़ा कॉमनली यूज होता है. ये है ट्राई एंड एरर मेथड. तो ये देखिए क्वेश्चन कैसा है. टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स. द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट is 56 more than the total number of subsets of the second set. तो फर्स्ट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 to the power n और सेकेंड सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 to the power n. The number of subsets of the first set is 56 more than the number of subsets of second set. So this is the equation. Now we have to check for what value of m and n this equation is satisfied. So just apply the try and error method. This is the best way to solve this equation. So you can check this option B is correct. Correct? 2 to the power 6 equal to 2 to the power 3 plus 56. 8 plus 56, that will be 64, and 2 to the power 6 is also 64. This is the correct one. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं. ये क्वेश्चन बोलता है x इक्वल टू दिस ट्रिपलेट x y z such that x y z are natural number and x plus y plus z equal to 10
एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो देयर, एक्स इज लेस देन वाई लेस देन जेड, ठीक है, एंड वाई इज द सेट ऑफ ट्रिपलेट एक्स वाई जेड सच दैट वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड, एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर। तो पहले इस सेट को बनाते हैं। ऐसे 3 नेचुरल नंबर चाहिए जिनका सम 10 आए और ये भी फॉलो करता है। तो ये जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 to 7 सम 10 है, एक्स वाई लेस देन वाई लेस देन जेड, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। सम 10 हो सकता है लेकिन ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, एक्स इज लेस देन वाई लेस देन जेड, ठीक है। तो इतने नंबर आ गए इसमें सेट एक्स में। और अगर वाई की बात करूँ तो वाई में मैं बहुत सारे ये ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट लिख सकता हूँ। देयर आर सो मेनी ऑर्डर ट्रिपलेट्स, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच कैन फॉलो दिस वन। बट अपने को इंटरसेक्शन देखना है, क्वेश्चन बोलते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कैसे आएगा, इनमें कॉमन देख लो, ये फॉलो नहीं कर सकता, कॉमन के लिए ये वाला रूल आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 - 1 2 होता है, 6 - 1 3 होता है, लेकिन 5 - 1 4, तो ये ओके होगा, ये फॉलो नहीं होगा, ये ओके होगा और ये भी ओके होगा। 5 - 1 4, 5 - 2 3, सो इसके अंदर ये 2 एलिमेंट्स आ गए। सो देयरफॉर एक्स इंटरसेक्शन वाई जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ये होगा। अब ये 36 क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या बोलता है, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट एक्स, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट एक्स, ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 सेट दिए हुए जिसमें सबसे बड़ा सेट एक्स है, मतलब एक्स यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। सच दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बट ए सबसेट बी का नहीं है, ए और बी सबसेट है एक्स के। देन ए इज a सबसेट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज a सबसेट ऑफ ए and B are disjoint, A and the complement of B are not disjoint। बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनाएंगे ना तभी ये बनेगा, ऐसे आप थिंक आउट नहीं कर सकते। देखिए फर्स्ट केस, ये तो सेट एक्स हो गया, ठीक है। अब ए और बी तो सबसेट है एक्स के, तो ए और बी यहाँ आएंगे, लेकिन अब फिगर एक्चुअली में होगा क्या, या तो फिगर ऐसा होगा, ठीक है, क्यों, कंडीशन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट बी का नहीं है, या फिर ये फिगर होगा, ये 2 फिगर हो सकते हैं। दोनों केस में ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, करेक्ट है। तो ए अगर सबसेट नहीं है बी का, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ऑटोमेटिकली बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, तो कट गया, एक ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब देखो ए इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये हो सकता है, ए इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यहाँ देखिए ए इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बट प्लीज माइंड इट, यहाँ ये ट्रू है लेकिन ये केस में ट्रू नहीं है, ए इज नॉट एट ऑल सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये बी में आ जाता है ए का। सो देयरफॉर दिस ए इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज ट्रू ओवर हियर बट नॉट ट्रू ओवर हियर, एंड वी आर नॉट श्योर वेदर दिस केस इज देयर और दिस केस इज देयर, बिकॉज जो गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दिस मे बी पॉसिबल, दिस मे बी पॉसिबल, कोई एक पॉसिबल हो सकता है, वी आर नॉट श्योर एट द मोमेंट विद द गिवन कंडीशन, करेक्ट है। सो देयरफॉर अब इसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते, तो ये भी हट गया। ए एंड बी आर डिसजॉइंटेड, फिर वही बात आ गई, यहाँ डिसजॉइंट है लेकिन यहाँ डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये केस होगा तभी हम बोलेंगे ना ए और बी डिसजॉइंट है, और श्योर नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये केस भी हट गया। डेफिनेटली आंसर डी होगा, लेकिन चेक कर लेते इसको, ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी दोनों नॉन डिसजॉइंट होंगे, करेक्ट है। यहाँ नॉन डिसजॉइंट मतलब दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन तो होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट और ए में कॉमन दिख रहा है, ए खुद ही कॉमन है, बी कॉम्प्लीमेंट और ये भी डैश, ये है पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी और ये ए है, तो दोनों में कॉमन तो ए हो गया,
तो नॉन डिसजॉइंट वाला केस इसमें हो गया। इसको देखते हैं, अगर ये बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट और सेट ए में कुछ ना कुछ तो कॉमन है, दिख रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट और सेट ए में ये इतना पोर्शन यहाँ कॉमन है, तो इन बोथ सिचुएशन में, वेदर ये सिचुएशन हो या ये सिचुएशन हो, ये बात सही हो जाती है। तो ऑप्शन डी। तो वेन डायग्रामेटिकली बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस आपने डीपीपी के सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। उसके बावजूद भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, किसी में डाउट है, तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें ये फिर से क्वेश्चन आएगा, जिसके इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था, वो ऑर्डर ट्रिपलेट में था, एक्स वाई जेड वाला, और ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स में है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये डिस्कस होगा क्वेश्चन फिर से, लेकिन क्योंकि मैंने आपको सेट थ्योरी में बनाने दिया है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। एंड वी हैव, आप सब लोग एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको मालूम है, ठीक है। तो देखो, ये y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ, the y is equal to e to the power x is always passing through the 0,1 point. This is y is equal to e to the power x, and this is the graph of y is equal to x. ये y is equal to x का लाइन है, और दोनों ग्राफ कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जितने भी x, y इस ग्राफ में होंगे और जितने भी x, y इस ग्राफ में होंगे, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ तो सबको मालूम है, जो x होगा, जो पॉइंट्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट x और y दोनों सेम होंगे, तो 1,1, x 1 है, y 1 है, e की पावर 1, तो 1 के बराबर e की पावर 1 नहीं होगा। अब e एक पॉजिटिव नंबर है, इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो नंबर तो बढ़ते जाएगा, जबकि यहाँ जो x रहेगा वही y रहेगा, x, y से। जो x, y यहाँ पे है, दोनों सेम है। यहाँ 2 की x को, तो यहाँ पे भी 2 होगा, लेकिन ये 2 e की स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। तो ये भी एक सिंपल सा ट्रिक है इसमें, या फिर आप ये फिगर बना लीजिए, y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, y इक्वल टू x का ग्राफ, दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं होने वाले हैं। सो देयरफॉर दिस ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी इज फाइन, ये करेक्ट है, ठीक है। तो जितने भी मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि ये प्रॉब्लम शायद आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा, आपने डीपीपी सॉल्व किया होगा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉब्लम गई होगी, तो इसीलिए मैंने इसका सोल्यूशन बना दिया। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।